Now, since most of you weren't there in the last class, so we're going to start off with the very first chapter. We're going to go through Walaikum Assalam, Bache. We're going to go through the scratch. So, the very first chapter that we have is cell structure and function, right? And for that, for to understand that, Walaikum Assalam, we need to understand what a cell is. Cell हमारे पास जो होता है, that is considered to be the basic functional unit of life. Why are we calling it a functional unit of life? Is because it can carry out specific functions. All right. इसी तरीके से basic unit of life क्या होता है? The thing that is basically giving us life is the protoplasm. Protoplasm क्या है? It's a jelly-like fluid with all the dissolved substances in it that uh, is basic that where the where the right chemical reactions are going on that are needed to generate life. राइट अच्छा फिर वी गिव यू एग्जांपल्स कि अच्छा हमारे पास सेल्स कौन कौन एग्जांपल्स ऑफ सेल्स क्या है रेड ब्लड सेल्स हमारे पास दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड the white blood cells they help in what we call as immunity. The platelets help in clotting. Is my voice fine? Yes, sir. Okay. Now, सिमिलरली न्यूरॉन्स हमारे पास जो होते हैं वो नर्वस इम्पल्स को जनरेट भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, और हमारे पास जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। प्लांट्स मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो वाटर और आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, सो एवरी सेल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन. Why is a cell termed to be a living organism is because it has all the properties that are there or that are needed to, classify a living organism as a living organism. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हम उसे मिसेस ग्रेन करके पढ़ते हैं? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन. ठीक है. अब ऑन दिस बेसिस हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल के बने हुए लेकिन ये सारे काम कर रहे हैं. Those organisms are called as unicellular organisms. They're made up of a single cell. For example, bacteria एक सिंगल सेल है जो सारे काम कर रहा है. अमीबा एक सिंगल सेल है, सारे काम कर रहा है. Certain fungi such as yeast. Similarly, हमारे पास in most of the cases the cells they join up together and they give you a more complex organism. That complex organism is called as a multicellular organism. An organism it is carrying out all of these properties, but at the same time it is made up of more than one cells. For example, animals including humans, plants, and certain fungi such as mushrooms. फिर हमने कहा था कि ऐसे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन हुई भी होती है. They're not just clumps of cells. What happens is, in multicellular organisms, cells of either the same or different types they join up together to give you a substance that we call as a tissue. Tissues join up together to give you organs, and organs, हमेशा of different types, would give you an organ system. And many different organ systems joined up together are going to give rise to multicellular organisms, right? Now, out of all this, we have to know about organs a bit more. किस तरीके से कि भाई organs हमारे पास होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हम उनको देख सकते हैं. We can see our eyes, we can see our ears, we can see our tongue. If I'm going to cut open an organism, I could actually appreciate where the heart is, where the kidneys are, so on and so forth, right? और दूसरी बात हमने कहा था कि भाई वो स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक से क्या मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. तो हमने यहाँ देखा था कि भाई वी गेव यू एन ओवर सिंप्लीफाइड हार्ट. हार्ट इज हॉलो ऑन द इनसाइड ताकि उसमें ब्लड भर सके. It's muscular on the outside, so every time it's contracting, it can force the blood out, and hence it's acting as a pump. किडनी जो हमारे पास है वो हार्ट वाला काम नहीं कर सकती. क्यों? किडनी इज नॉट हॉलो, इट कैन नॉट collect blood, it cannot fill itself with blood. Kidney is not muscular, so it cannot contract forcing the blood out. हाँ, उसके पास नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, एक्सक्रीशन कैरी आउट करवाते हैं. नाउ, knowing this, हमने बात करी थी कि अच्छा भाई हमारे पास सेल्स के अंदर भी
कुछ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं which are doing what? Which are carrying out a particular function, और उनका जो particular function है वो उनका structure दे रहा है, right? Their structure is able to help them out with that particular function, right? And those substances or those structures are called as little organs, organelles. The very same way as mini cigars are cigarettes. So mini small organs are organelles. They work on the basis of a phenomena that we call as division of labor. Division of labor से मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? Let's say that we decide to do some work. Let's say we decide to change the tire of a car. So let's say I ask someone to put the jack under the car. I ask someone to undo the what we call as the nuts and the bolts on let's say of the car, and let's say I ask someone to replace the tire. So those three people, everyone is carrying out a different function. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास गाड़ी का टायर चेंज हो रहा है. तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनमें से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इनमें से कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, कोई प्रोटीन्स बनाएगा, कोई सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, राइट? सो this is what we mean by division of labor. देखो in the exam they are not going to ask you the definition of division of labor. लेकिन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अच्छा, जब इफ यू एवर कम अक्रॉस दिस वर्ड डिवीजन ऑफ लेबर तो इसका मतलब क्या है. ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कलान, ओके. हाउ इज फंजाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ? देखो मेरे बेटे, देयर आर सर्टेन फंजाई व्हिच एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्स. हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यीस्ट एक सिंगल सेल फंजाई. लेकिन मशरूम्स जो हैं, वी कैन एक्चुअली सी देम, वो काफी बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो कुछ फंजाई होती हैं जो एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कुछ फंजाई होती हैं जो कि एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो कर रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती हैं. बात समझ में आ रही है बच्चे? ईशा बच्चे, डू वी गेट इट? ऑल राइट. नाउ नाउ अब अगर हम आगे बढ़े, नाउ व्हाट वी नीड टू नो are the different organelles that are present in animal cells and plant cells. So we're going to talk about, we're going to just go over especially the nucleus very quickly again. तो हमने क्या कहा था कि since we'll be comparing animal cells and plant cells, तो एक बात याद रखिएगा, animal cells compared to plant cells are irregular. अब उसका रीजन क्या है, we'll talk about that. अब उसका रीजन क्या है, we'll talk about that. ठीक है? Now, when we talk about a particular animal cell, सेल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, राइट? तो हमने क्या करा, हमने उसको एक डीमार्केट कर दिया, हमने उसकी बाउंड्री बना दी. दैट बाउंड्री ऑफ द सेल इज व्हाट वी कॉल एज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि इट इज सेमी परमिएबल, इट्स पार्शियली परमिएबल, इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल. और दूसरी चीज, ये बनी हुई किससे है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, हमें याद नहीं रखना, वो एएस लेवल में जाके पढ़ेंगे. हमें बस पता ही होना चाहिए कि भाई दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड्स. वंस वी हैव दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम इसमें प्रोटोप्लाज्म डाल देंगे. बट वंस वी पुट द प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, वो एक बेसिक फ्लूइड, वो प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, वो सेल का फ्लूइड हो जाएगा. सेल को हम लोग लैटिन के अंदर साइट्स कहते हैं. एंड फॉर दैट रीजन the fluid of the cell is called as cytoplasm. The word plasm means fluid, the word cyte means cells. तो फ्लूइड, सेल का फ्लूइड क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म. ठीक है जी, मेक सेंस? यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? डू वी हैव एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अच्छा. Now the third and the most important organelle that we have is the nucleus. Now when we talk about the nucleus हमारे पास क्या है, it controls the activities of the cell.
अब ये कैसे करेगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ बिफोर वी कैन टॉक अबाउट दैट, before we talk about that, let's discuss the parts of the nucleus. Actually, all of the detailed notes would be uploaded as soon as we're done with the chapter. Take it on the portal or on the drive that is given to you. खैर, coming back here. अब सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए न्यूक्लियस के बारे में, वो उसकी हमें मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए. So the membrane of the nucleus is what we call as the nuclear membrane. Now, whenever we talk about the nuclear membrane, एक stark difference हमारे पास क्या है between the cell and the nuclear membrane is that cell membrane पूरी intact है, कोई break नहीं है इसमें. लेकिन अगर हम nuclear membrane को देखें, इसमें तो holes हैं, like this, like this, like this, like this, like this, like this, right? तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो nuclear membrane है वो हमारे पास porous है. Since it's porous, the cytoplasm from the outside can leak and go inside. Once the cytoplasm go inside, it becomes the fluid of the cell, and this fluid of the cell is called as the nucleoplasm. कोई फर्क नहीं है, लोकेशन चेंज हो गई तो हम लोगों ने नाम भी चेंज कर दिया. ठीक है. Now अब let's talk about the most important thing. Let's talk about these fibers, these purple thread-like structures that we have right here. These purple thread-like structures that we have, they are called as chromatin fibers. These chromatin fibers in a dividing cell, वो cell जो divide करने वाला है, उसके अंदर they're going to convert, they're going to condense, they're going to change into what? They're going to change into chromosomes. Chromosomes और chromatin fiber में कोई फर्क नहीं होता. बस क्रोमोसोम थोड़े ज्यादा कॉइल्ड अप क्रोमेटिन फाइबर होता है. अगर क्रोमेटिन फाइबर ऐसा है और वो कॉइल अप हो जाए यूं करके, तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा. ठीक है. There's no difference. All right. Achha, what's so special about the chromatin fiber is that these chromatin fibers, they contain what? They contain DNA. And this particular DNA is made up of genes. Ab hum log, now we'll start talking about the genes in the chromosome up. So, can anyone tell me where are we getting our genes from? हमारे पास जो भी genes आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? Where are they coming from? Any ideas? Let's come on. हाँ जी, our parents. Very good, Maniza. From our forefathers, from the lineage. Very good, guys. आप इसको देखो. And where are the Maruk, where are the eggs and the sperm cells coming from? The parents, right? These genes are basically giving me, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, these genes give our traits. Traits का एक और नाम क्या है? Characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आइदर बी फिजिकल, हम दिखने में कैसे हैं, और दे कैन आइदर बी बिहेवियरल एज वेल. ऑलराइट. अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई हम यू नो व्हाट इज माय फिजिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ. मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, it's made up of proteins. Mostly it's proteins, right? If you would talk about her hair and her nails, it's made up of a protein called as keratin. If you would talk about the color of her eyes, the color of the hair, color of the skin, not the nails, uh, they are called as it's made up of a protein called as melanin. Yes, Moniza, personality traits. मैं बता रहा हूँ. Amna, just give me a minute. सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं, वो हमारे बोन के नीचे एक कार्टिलेज होती है. कार्टिलेज किससे बनी हुई? कोलेजन से बनी हुई है. वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास प्रोटीन्स है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. डू वी गेट दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन सो फार? सिमिलरली अगर हम लोग पर्सनैलिटी या बिहेवियरल ट्रेट्स के बारे में बात करें, हम कितनी बार सुनते हैं कि ये बच्चा अपने घर वालों की तरह गुस्से वाला है, और सम अदर ट्रेट, सम अदर बिहेवियर. Our behavior is controlled by hormones. Most, not if not all, most of our hormones are made up of what? They're made up of proteins.
Our hemoglobin is protein. Our enzymes, they need to, have a specific structure to carry out a particular function. They are all proteins. अब जो proteins मेरे पास है ना, so we have how many members, including me in this group, about 29, right? So all 29 of us, we have the same proteins. जो मेरे पास कार्टिलेज के अंदर कोलेजन है ना, सबके पास, सारे इंसानों के पास है। फर्क बस क्या है, वो बन किस तरीके से रहा है। What are my parents giving me in form of protein, these genes are codes, कि अच्छा हारिस में जो प्रोटीन्स है ना, राइट, वो रेहान के प्रोटीन से नहीं बनने चाहिए। वो हारिस, वो हमारे, दे शुड बी लाइक माय पेरेंट्स, दे शुड बी लाइक अस, राइट। आमना के जो प्रोटीन्स है, उनका जो शेप होगा, वो आमना के पेरेंट्स की तरह होगा। इट्स अ मिक्सचर ऑफ आमना's पेरेंट्स, नॉट एनीवन else's, राइट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जीन्स मेरे बच्चों, जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, व्हाट आर माय पेरेंट्स गिविंग मी इन फॉर्म ऑफ जीन्स, these are codes for what? Codes for proteins. Make sense? यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, let's just give it 2 minutes, अजान हो जाए। अच्छा जी, सो कमिंग टू योर क्वेश्चंस। अच्छा, पहले क्रोमैटिन फाइबर वाली चीज देख लेते हैं बेटे। बेटे होता क्या है, हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल से होता है। नहीं, यहाँ इतना मजे का नहीं है। I'll show you a better thing for it. It should be somewhere here. Yes. बच्चा लोग, होता क्या है, हमारे पास जो डीएनए होता है ना, वो कॉइल अप होता है, ठीक है। और वो क्या बना लेता है, वो क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है। ये कॉइल अप होकर जब क्रोमैटिन फाइबर्स बनाएगा, तो क्रोमैटिन फाइबर से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाता है। So I should have a diagram somewhere. I'll see if it's right here, I think. No, that's not here. This AS level, by the way, तो तुम लोग को ये सब चीजें पता नहीं होनी चाहिए। Hmm, ये रहा। सो होता क्या है, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेरे पास ऐसा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, वो कॉइल अप होता है और ऐसे छोटे स्ट्रिंग्स बना लेता है। और ये स्ट्रिंग्स फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन और छोटे हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज, आई होप आमना यू गेट द पॉइंट। तो क्रोमैटिन फाइबर्स कुछ भी नहीं, क्रोमैटिन फाइबर्स बस कॉइल्ड अप प्रोटीन्स है मेरा बेटा। अच्छा, सो दूसरी बात, लैला, कोड्स। कोड्स का मतलब क्या होता है, कोड क्या होता है, कोड इज एन ऑर्डर, राइट। इट्स देयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि अब देखो, व्हाट माय पेरेंट्स आर गिविंग मी इन, व्हेन आई एम सेइंग माय पेरेंट्स आर गिविंग मी कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ जीन्स, कोड्स का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के, चाहे हारिस के सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनेंगे, वो इस तरीके से बनेंगे। डू वी गेट इट मेरा बच्चा? अच्छा जी, सो सो नाउ दैट वी नो कि अच्छा मेरे पास क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है। अब दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि ओके, once we know कि हमारे पास, the chromatin fibers, they contain the DNA are made up of genes, genes are coding for proteins। ये प्रोटीन्स बनाएगा कौन? देखो, as a CEO of a particular place, for example a particular factory, I'm not going to do any work, I'm just going to tell my employees कि अच्छा आज ये बनाना है, इतनी क्वांटिटी के अंदर बनाना है, इस तरीके से बनाना है। सो हमारे सेल के अंदर भी दीज क्रोमैटिन फाइबर्स तो बेसिकली एक्ट एज सीईओज। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जीन्स हैं, वो बता रहे होते हैं कि अच्छा प्रोटीन अगर बनेगा तो इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोटीन्स बनाएगा कौन? हमारे पास हमारे सेल्स के अंदर ऐसे मफिन शेप, ऐसे कपकेक शेप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, वेरी स्मॉल। These are called as ribosomes. What do we call them? These are called as ribosomes. और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं? दे कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। दे ये प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन अब देखो, कहने का मकसद क्या है, अब इस बात को समझो, इस बात को समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देखो,
when I said that the nucleus controls the activities of the cell, तो वो कर कैसे रहा है, राइट? अब न्यूक्लियस के पास क्योंकि कोड्स हैं प्रोटीन्स के लिए, वो बताएगा कि अच्छा इस वाले सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होना है, इस वाले सेल में ये प्रोटीन्स बनने हैं, ये वाले प्रोटीन्स नहीं बनने। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हमारे पास जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट आर कॉल्ड एज सेलिवरी एमिलेस। अब सेलिवरी एमिलेस के जो कोड्स हैं वो मेरी सारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर है, मेरे स्किन सेल्स के अंदर है, लेकिन वो हर जगह नहीं बन रहा। वो सिर्फ उसका जो सारे सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो बता रहा है कि अच्छा भाई, स्किन सेल्स यू नॉट सपोज टू मेक एनी एमिलेस, यू सपोज टू प्रोड्यूस मेलानिन। पेनक्रियस के जो सेल्स हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा भाई, उसका जो न्यूक्लियस है वो कह रहा है कि ओके आई हैव टू कोड फॉर इंसुलिन, तुम्हें इंसुलिन बनाना है, तुम्हें इतनी क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन बनाना है, तुम्हें सेलिब्री एमिलेज नहीं बनाना। सेलिब्री ग्लैंड्स के जो हमारे पास सेल्स हैं, उनका न्यूक्लियस उनको बता रहे हैं कि ओके राइट हियर यू नीड टू प्रोड्यूस एमिलेज, यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस एनी मेलानिन, यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस इंसुलिन और ग्लूकागॉन, यू आर ओनली सपोज टू प्रोड्यूस व्हाट, एमिलेज। मेक सेंस? तो इस तरीके से हमारे पास कंट्रोल हो रहा है। दूसरी बात, सर ये जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बना रहे हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? देखो होता हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, राइबोसोम्स हमारे पास जो होता है ना, वो हर सेल के हिसाब से टेलर मेड होता है। टेलर मेड का मतलब क्या हुआ कि अगर उनकी जरूरत होगी तो किसी सेल के अंदर अगर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वहां तुम्हें ज्यादा राइबोसोम्स मिलेंगे, अगर किसी सेल के अंदर कम प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो तुम्हें कम राइबोसोम्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर टू अ मसल सेल, स्किन सेल्स कैरी आउट लेस प्रोटीन सिंथेसिस, तो उन स्किन सेल में राइबोसोम कम होंगे और मसल सेल्स के अंदर राइबोसोम ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब बात ये आती है कि सर सो ओके फाइन, वी एग्री विद यू, सो इन राइबोसोम्स को कौन बना रहा है? राइबोसोम्स को न्यूक्लियस का ये ब्लैक कलर का स्पॉट बना रहा है। दिस ब्लैक कलर स्पॉट ऑफ द न्यूक्लियस is the fourth part of the nucleus, is called as nucleolus। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट मेक्स व्हाट? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करेंगे? वो प्रोटीन्स बनाएंगे। और उनको कौन बताएगा कि अच्छा भाई प्रोटीन कितने बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं? द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए, विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमेटिन फाइबर्स। बात समझ में आ रही है? डू वी गेट इट? ऑलराइट, गुड इनफ। नाउ अच्छा, अब हम लोग एक और चीज क्या देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर वी हैव अ पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स जो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते हैं। दिस पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, इनका काम क्या है? हमने कहा दे हेल्प इन सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? देखो बच्चों, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्स एवर केम इनटू दिस वर्ल्ड, राइट, आई वाज a single cell organism called as a zygote। ये जाइगोट दो में डिवाइड हुआ, ये दो सेल्स चार में डिवाइड हुए, सो ऑन सो फोर्थ, एंड एज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग राइट नाउ आई हैव अबाउट अ ट्रिलियन सेल्स ऑन एन एवरेज। तो सेल्स डिवाइड करके अपने नंबर इंक्रीज करते हैं ना, इस काम के अंदर उनकी हेल्प कौन करता है? ये सेंट्रियोल्स कर रहे होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। सेल डिवाइड करते हैं सेंट्रियोल्स के बगैर भी, लेकिन वो थोड़ा सा स्लोली करेगा कंपेरेटिवली, राइट? मतलब इट्स pretty much the same thing कि if I have to clean the floor, और कभी मैं उसको I'm doing it with a broom, with a झाड़ू, and sometimes I'm doing it with, let's say, a vacuum cleaner। तो मैं जल्दी कब कर लूंगा? वैक्यूम क्लीनर से जल्दी कर लूंगा, झाड़ू से मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ भी यही चीज है। खैर, अच्छा अब सेल्स इतने सारे काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स बना भी रहा है, प्रोटीन्स के लिए कोड भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से कभी कभार एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करेगा, तो इसको एनर्जी भी तो चाहिए। To provide the cell with energy, we have organelles that look like this. These organelles are called as mitochondria. Can anyone tell me the function of the mitochondria? So this is going to be our sixth organelle.
माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। व्हाई डू सेल्स डिवाइड? टू इंक्रीज देयर नंबर बेटे। अच्छा जी, इट गिव्स एनर्जी। वेरी गुड, पावर हाउस, पावर हाउस। See, this is what I wanted to hear. वेरी गुड आमना, वेरी गुड आमना, वेरी गुड मारूफ बेटे, वेरी गुड। अच्छा, देखो, if somebody is going to ask you कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। उसका फंक्शन नहीं है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? हम कहते हैं it produces what? Mitochondria produces energy in small packets called as ATP। वो एक अलग चीज है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वेरी गुड। it produces energy through कौन सा वाला प्रोसेस? वेरी गुड मनीषा। it produces energy through respiration। very good, this guy right here। अच्छा, आप रेस्पिरेशन भी दो तरीके की होती हैं भाई, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। व्हाट डू यू गाइस थिंक, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक या एनएरोबिक? एरोबिक, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट कर रहा है, तो उसको तो टू कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट वुड इट नीड? इट वुड नीड ऑक्सीजन। मेक सेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा जी। नाउ दैट वी नो दिस, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। अगर मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किधर होगी? Inside a cell, muscle is an organ, I'm talking about inside a cell मेरा बच्चा। वेरी गुड यार। नहीं नहीं नहीं, देखो, मसल सेल के अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मसल सेल के माइटो चलो मसल सेल के बारे में बात करते हैं। भाई मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। एनारोबिक किधर होगी? वेरी गुड लैला, लैला ने सबसे, आयशा आई नॉट आस्क कब होगी, मैंने कहा किधर होगी। तो लैला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लैला ने कहा कि सर, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो anaerobic respiration does take place outside the mitochondria, right? And anaerobic respiration takes place in the cytoplasm. So anaerobic respiration is a site of, sorry, cytoplasm is a site of anaerobic respiration। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बाहर किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है आजम? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ। अब मुझे लेट्स गो बैक अप। लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय राइट हियर, द रेड ब्लड सेल्स। Do red blood cells have a mitochondria? No, they don't. Red blood cells do not have a mitochondria. Do they need energy? Yes, they do. So how are they getting the, इनके पास साइटोप्लाज्म तो है। Red blood cells get their energy through anaerobic respiration। अच्छा, सवाल ये है, रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता? Why is there no mitochondria inside a red blood cell? तो ब्लड तो रेड ब्लड सेल के बाहर है ना मेरा बच्चा। तो न्यूक्लियस नहीं है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया का। अरे इतना आसान है मुदस्सिर, इट्स वेरी इजी। टू कैरी मोर ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, ट्रस्ट मी, it's going to be fun। न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया को कोई ताल्लुक नहीं है। देखो देखो, अच्छा अच्छा, मुझे 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 बताओ। लेट्स थिंक ऑफ इट इन अ डिफरेंट वे। Let's say you guys open up a chocolate shop. You guys decide to go all Willy Wonka, and you guys decide to open up a chocolate shop. ठीक है?
and you fill it up with the chocolates, and you guys asked me कि सर एक काम करें, how about you run the shop, how about you run the place. और मैं क्या करूं, me being the greedy self that I am, मैं सारी chocolates खा जाऊं before the shop even opens. Will you guys be able to sell anything? Right? No. Right? क्योंकि सारी chocolates तो मैं खा गया. इसी तरीके से मुझे बताओ, what is the function of the red blood cell? To transport oxygen, right? To transport, not to carry blood. Red blood cells form, they're a part of blood. Blood is a tissue. They transport what? Oxygen. Very good. Very good. ठीक है? They transport oxygen. अब मुझे एक बात ही बताओ, chocolates are very good for the health. अच्छा खैर, so mitochondria कौन सी वाली respiration कर रहा है? Aerobic respiration. जिसके लिए उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन. अगर रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता, सारी ऑक्सीजन तो वो खुद ही इस्तेमाल कर लेता. Isn't it? वो ट्रांसपोर्ट भी कर पाता था. Make sense, guys? For that reason, it does not have, for that reason, the mitochondria, so the red blood cells do not have a mitochondria. Okay, makes sense? They have the cytoplasm, Aisha, so they get their energy through anaerobic respiration. ठीक है चंदा? अच्छा, now, there are certain cells in my body. Cell को energy नहीं चाहिए मेरा बच्चा. What's going to give the cell its energy to carry out the different chemical reactions? Where is all that activation energy going to come from? Do we get it, Ella beta? अच्छा, अब देखो. अब there are certain cells in our body that are concerned with absorption. For example, the cells of the small intestine. तो उनके लिए self absorption को increase करने के लिए we have these finger-like organelles. We have these finger-like extensions that we call as the microvilli. Anaerobic respiration is a respiration that takes place, that it's a chemical reaction that produces energy without the needing of oxygen, without the need for the oxygen. खैर, so microvilli. Microvilli क्या करते हैं? Microvilli, they're extensions, finger-like projections that increase what? Surface area to what? Volume ratio. किस चीज के लिए? Absorption के लिए. अब ये surface area to volume ratio क्या है? Surface area to volume ratio क्या है? We'll talk about that in the next class, in the next chapter. ठीक है, उसमें डिटेल में बात करेंगे, अभी फायदा नहीं है. अच्छा, महमूद मुझे बताओ, do the small intestines not have cells? Small intestine का जो ileum होता है, वो it's a tissue, right? It's a part of the organ. तो उसके जो cells होंगे उनका काम क्या है? Absorption. So to absorb or to carry out absorption, would they not need or the microvilli बचे? बात समझ में आ रही बच्चा? अच्छा, similarly, अब इस चीज को देखो. My windpipe, the trachea, it's producing mucus. So let's say अगर ये मेरा windpipe है, it's producing mucus. फिर उसके extensions होती है bronchioles, वो भी mucus produce कर रही है. Every day, ईशा बताता हूँ मुझे. Every day, we either ingest about 1 to 1.5 liters of mucus, or if it's in a larger quantity, we throw it out. अब मसला ये है, we ingest or throw it out from our throat, right?
तो म्यूकस ब्रोंकियोल या ट्रैकिया से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर कैसे आएगा? It has to be brushed upwards. For that, certain cells in our body, they have these hair-like extensions. Hair बाल नहीं होते, वो बालों की तरह extensions होती हैं. They contract and relax. कैसे मोशन के अंदर? स्वीपिंग मोशन के अंदर. ताकि अगर मेरे पास यहाँ एक म्यूकस है या कोई भी और दूसरी चीज है, वो ब्रश होते होते दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाए, राइट? These hair-like extensions, they are called as cilia. So these hair-like extensions, there's going to be our eighth organelle, and it's called as cilia. Cilia हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? They are hair-like proteins that contract किसकी तरह? झाड़ू की तरह. That contract in a कैसा motion? Sweeping motion. ताकि चीजें मूव कर सकें. सिर्फ सेल्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते. एंड हाउ आर दे गोइंग टू डू? नो नो, म्यूकस सेल्स. जब म्यूकस उनको ट्रैप कर लेगा मुनीसा हार्मफुल पार्टिकल्स को, तो ये सीलिया उनको आगे की तरफ ब्रश कर देंगे सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ द बॉडी. माइक्रोविला आर नॉट ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट यस, हमारे सिलेबस के अंदर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द cells of the small intestine. So are the small intestine not part of the animal cells or the animals? They are, right? So they'll still be animal cells. So isn't microvilli going to be an organelle of the animal cell, beta? Minail? ठीक है. ईशा और आमना, माइक्रोविलाई क्या है? बस ये एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती हैं. फिलहाल ये बात याद रख लो कि ये एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती हैं. वेरी गुड मेमोरी. ठीक है, बस वी नीड टू रिमेंबर दिस ओनली राइट. ठीक है बेटे. ऑल राइट. ओके डॉक्स. नाउ सो दीज वर द 8 ऑर्गेनल्स जो तुम्हें एनिमल सेल में मिल सकते हैं. जरूरी नहीं कि सारे कि एक सेल के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स हो, लेकिन तुम्हें ऑर्गेनल्स किधर मिलेंगे? एनिमल सेल्स में. ठीक है जी. ऑल राइट. Now that we know our animal cells, let's compare these animal cells with what cells? With the plant cells. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, एक बात याद रखिएगा. कंपेयर टू एन एनिमल सेल, प्लांट सेल कैसा होता है? प्लांट सेल इज रेगुलर. वो रेगुलर नहीं होता. क्यों नहीं होता? विल गेट टू नो दिस इन अ मिनट. ठीक है. ना, अब अगर हम लोग प्लांट सेल को देखें, वो भी तो सेल है. तो would it not need a cell membrane? Yes, it would also need a cell membrane. Again, plant cells की जो cell membrane होती है, it's exactly like that of the animal cell. वो भी partially permeable होगी. वो भी हमारे पास लिपिड से बनी हुई होगी. To generate life or to give life to the cell, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, राइट? और वो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. प्लांट सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है. एंड सर्टेन टाइम्स these plant cells they carry out anaerobic respiration. Do plants follow the rules of genetics? Yes, they do. So would it have a nucleus? Yes, they would also have a nucleus. अगर हमारे पास एक एप्पल ट्री है, उसके सीड से एप्पल ही निकलेगा. उसके सीड से, और if I'm going to plant an apple seed, उससे हमारे पास ऑरेंज ट्री ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा जी. So the plant cells also have a nucleus. उनका न्यूक्लियस भी हमारे पास कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन. वो उसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके पास भी न्यूक्लियोलस होता है, so on and so forth, right? हाँ, नंबर ऑफ डीएनए क्रोमैटोफाइबर्स चेंज हो सकता है. Do plants require proteins? Yes, they do. So for the protein synthesis, the plant cells are also going to have ribosomes. And do plants produce energy? Do they carry out aerobic respiration? Yes, they do. And for that, they're also going to have a mitochondria. तो ये 5 हमारे पास जो ऑर्गेनल्स हैं, ये एनिमल और प्लांट सेल्स में सेम होते हैं. ठीक है.
Up now we have three organelles that are present in the plant cells, but they're not present in the animal cell. ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो मुझसे हमने ने बोला plant cells have permanent vacuoles. ठीक है? और इन वैक्यूल्स में भी फ्लूइड होता है. So this structure right here, this sixth organelle in the plant cell, is a permanent कैसा वैक्यूल? सैप वैक्यूल. अब दो चीजें बेटा. Why am I stressing कि it's a permanent vacuole? क्योंकि हमारे पास वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं बेटे? वो टेम्परेरी होते हैं, कभी हैं कभी नहीं है. अब असल बात यह है, यू नो, टू ऑफ यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि सर वैक्यूल होता क्या है, करता क्या है? भाई जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल इज अ स्टोरेज बॉडी. For example, let me give an example. My liver cells store glucose in form of glycogen. तो वो ग्लाइकोजन को किधर स्टोर करेंगे? वो वैक्यूल में स्टोर कर देंगे. Plant cells need to store lipids, they need to store starch, they need to store some amino acids, some mineral ions. वो किधर करेंगे? They're going to store it in the sap vacuole. ये permanent होता है और compared to animal vacuoles, it's quite large. ठीक है? इसका जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप. इसके और भी फंक्शंस होते हैं. हम लोग जब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये टर्गर प्रेशर के अंदर भी हेल्प करता है. वो अलग चीज है. फिलहाल वी जस्ट नीड टू मेक अ नो द बेसिक फंक्शन. तो एक वैक्यूल किसकी तरह काम करता है? एक वैक्यूल स्टोरेज बॉडी की तरह काम करता है. एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल होते हैं. एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो टेम्परेरी होते हैं. ठीक है? प्लांट सेल्स में परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं. जो हमारे पास वैक्यूल का फ्लूइड होता है, इस तरीके से हमारे हमने कहा भाई सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म. इस वैक्यूल में जो फ्लूइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल सैप. एंड हेंस हम कह रहे हैं कि भाई सैप वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है. राइट? मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? Does everyone get this? Okay. Now, there are two more organelles present in the plant cells. Now, let's talk about the structure or the organelle that is basically making the plant cells or giving the plant cells the regular structure, and that's the cell wall. ठीक है? अच्छा. So plant cells के बारे में अगर हम लोग बात करें, या अगर if we talk about the cell wall, so let me use a different color for it here. Now, we'll deal with the cell wall the very same way we dealt with the cell membrane. सबसे पहली चीज हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है. हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल, सेमी परमिएबल. सेल वॉल इज नॉट. सेल वॉल कैसी होती है मेरे बच्चों? सेल वॉल इज fully permeable. If anything can fit inside of it, it can move across. Right? दूसरी चीज, ये बनी हुई किससे है? The cell wall is not made up of proteins, it is made up of a carbohydrate that we call as cellulose. ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज से बनी हुई है. तीसरी चीज सर, इसका काम क्या है? देखो, सेल वॉल जो है ना, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट. Now, every time I teach the cell wall, I start, feeling a bit jealous.
कि यार प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल क्यों है? Why don't my as an as an animal, why don't any of my or why don't the animals in general don't have a cell wall? Don't my cells need structural support? Don't I need structural support? So what's with the the racism? You see, what happens is it should be the other way around. The plants should feel jealous of us. Okay, they've only got a cell wall for structural support now. हमारे पास animals, for their structural support, they have a whole system. They have a whole musculoskeletal system, right? Which is not only giving us support, but at the very same time, it's also allowing us to carry out locomotion. Locomotion क्या होता है? To move from one place to another. प्लांट से मूवमेंट कर सकते हैं, वो एक ही जगह के ऊपर their roots can go down, their shoots can grow up. If we talk about sunflower, they can move, they can face the sun, but they cannot carry out locomotion. वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर नहीं जा सकते। बात समझ में आई? एंड देखो, क्योंकि सेल वॉल एक हार्डेंड स्ट्रक्चर है, वो प्लांट सेल्स को एक रेगुलर शेप देती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, हेंस द एनिमल सेल्स आर इरेगुलर। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Do we get this? Does anyone have any questions? अच्छा, अब जल्दी से एक और चीज। Another organelle that you would find in plant cells but not in animal cells is this particular organelle that we call as chloroplast. Chloroplast क्या करता है भाई? It has only one function. It contains a green colored pigment called as chlorophyll that helps it to carry out what? Photosynthesis. Thankfully, humans don't have it. I would not want myself or any part of my body to be green. ठीक है भाई? ओके। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि out of all the organelles, 8 organelles in plant cells and 8 organelles in animal cells, out of these organelles, 5 organelles are the same. दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। मैंने न्यूक्लियर क्यों लिखा हुआ है? It should be nucleus. है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। सेल मेम्ब्रेन से पार्शियली परमेबल, बेटा ये लिखा हुआ है ना चंदा? कम ऑन, इट्स इजी। अच्छा, अब चलो, अब थोड़ी सी चीज आसान करते हैं, ठीक है? अब एक और चीज करते हैं बिफोर वी गेट डन विद द क्लास। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक organelles in the plant cells and animal cells. कहने का मकसद क्या हुआ मेरे बच्चों? वी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट सेल में तो मिल जाएंगे, एनिमल सेल में कभी भी नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनल्स जो हमें एनिमल सेल में मिल जाएंगे लेकिन प्लांट सेल में कभी नहीं मिलेंगे। So can you guys name 3 organelles that will only be found in plant cells but never in an animal cells? Flowers are plants, obviously they're made up of plant cells. अच्छा भाई, जल्दी से। So 3 organelles present in plant cells, not in animal cell. Very good. So the cell wall, the sap vacuole, very good, and the chloroplast. अच्छा, okay. Up now let's make things more challenging. 3 organelles that are present in animal cells but never in plant cells. क्या प्लांट सेल के पास स्मॉल इंटेस्टिन है? नहीं है, तो उसके पास माइक्रोविलाई भी नहीं होगा। क्या प्लांट सेल के पास? वेरी गुड।
ट्रैकिया है नहीं है तो सीलिया भी नहीं होगा। एक और चीज म्यूकस इज नॉट एन ऑर्गेनल। सेंट्रियोल्स, वेरी गुड। देखो, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड रेहान। सेंट्रियोल्स हमारे पास एनिमल सेल्स में तो है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं हुआ कि प्लांट सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, प्लांट सेल्स जरूर डिवाइड करते हैं, बट बट दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर इट। ठीक है भाई। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो, सो विल स्टॉप इट टुडे।